Hello children, welcome back to the channel. Today we are going to start with the first chapter of civics, that is the Union Parliament. क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं. हम पढ़ेंगे दो टाइप ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, एक फेडरल और दूसरा यूनिटरी. उसके बारे में पढ़ेंगे और उनके डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फेडरल फीचर्स भी हैं और यूनिटरी फीचर्स भी हैं इंडिया के, वो हम कवर करेंगे. फिर हम पढ़ेंगे यूनियन लेजिस्लेचर, दैट इज द लोकसभा एंड राज्यसभा, उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में. तीसरा जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, कितने सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, द क्वेश्चन आवर, द जीरो आवर एंड ऑफ कोर्स द मोशंस ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है. फिर जो आखिरी टॉपिक हम कवर करेंगे वो है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट. पावर्स में लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, electoral power, and of course the executive control of the parliament, the exclusive power of Rajya Sabha and Lok Sabha. तो ये कंटेंट हो गया हमारा, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कवर करेंगे टू मेक इट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. शुरू करते हैं. now if you can see the screen, there is a world map, और उस वर्ल्ड मैप में कुछ कंट्रीज ग्रीन में है और कुछ ब्लू में है. नाउ जो कंट्रीज ग्रीन में है वो फेडरल गवर्नमेंट है, वेयर एज जो कंट्री ब्लू में है वो यूनिटरी गवर्नमेंट है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. लेट मी राइट इट हियर. टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. वन इज फेडरल and the other is unitary. अब features क्या हैं दोनों के? Federal government में there are different levels of government. उसमें more than 2 levels of government होते हैं. तो इंडिया में है central government as well as state government. And of course a third layer has been added later on. That's the local government. Okay. That is the feature of the federal government. So the power is divided between the different levels of the government, and each level has its own jurisdiction. Jurisdiction in terms of administration, making laws, as well as monetary independence. Whereas unitary government जो होती है उसमें the central government is the main component of the government. They have all the powers, and if there is another level of the government, they are sub unit of that government. तो central government के sub unit होते हैं which has to follow the directions of the central government. वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकते. जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी, जो इंस्ट्रक्शंस देगी, वो उन सब यूनिट्स को फॉलो करना होगा. ठीक है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एज वेल एज द यूनिटरी गवर्नमेंट. ये हो गए. सो द कंट्रीज लाइक फेडरल गवर्नमेंट में कौन कौन सी कंट्रीज आ जाएंगी? यू कैन सी इंडिया, बट वील ऑल्सो स्टडी कि इंडिया हैज बोथ द फीचर्स of federal government as well as unitary. That is why India is called quasi federal. ठीक है. इंडिया को कहते हैं quasi federal. That is federal है nature में, but it is also unitary in nature. So India, Russia, Australia, these are the countries. You can see Germany, then US. So all these countries, they have federal government, whereas countries like China, Japan, these are the countries which are unitary in nature. So you have to be very clear about the difference between federal government and unitary government. Question is, what type of government are there? So there are two types of government, federal government and unitary government. अब हम डिस्कस करेंगे फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन.
the federal feature of the constitution says that India has a dual set of government. Dual मतलब दो, तो दो set of government है, एक center में और एक state में, और दोनों ही government के अपने अपने jurisdiction है in respect to law making. वो अपना कानून खुद बनाते हैं, and let's put it this way, state government और later on एक local government भी add किया गया है. तो India has technically 3 levels of government. और लॉ खुद बनाते हैं ये अपना, मॉनेटरी इंडिपेंडेंस है, अपना खुद का बजट है, कैसे पैसे खर्च करने हैं स्टेट में एज वेल एज इन सेंटर, दे डिसाइड, एंड एडमिनिस्ट्रेशन इनका खुद का होता है. सो दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बोर्ड में क्वेश्चन आता है, स्टेट एनी 3 फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो यू कैन राइट एनी 3 features. First is the dual government. India has double set of government. Now comes the independent judiciary. The judiciary is independent, that is the Supreme Court जो है इंडिया का, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको राइट दिए हैं to resolve all the dispute between the center and the state. अब अगर जुडिशरी, सपोज एक एग्जांपल देते हैं कि अगर मैं किसी की दोस्त हूं और कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे मुझे एक अनबायस्ड डिसीजन लेना है अपने फ्रेंड के रिगार्डिंग, तो मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए कोई भी डिसीजन लेना, बिकॉज I will always think of whether I should favor my friend or not. So the same case is here कि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी और अगर कोई जज किसी का फ्रेंड हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, तो जो केसेस जाएंगे कोर्ट में, there are chances that the judiciary might be impartial towards the person with whom the judiciary is friends with. तो इसलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा जाता है ताकि वो इन्फ्लुएंस ना हो सके किसी से भी, कोई फेवर्स उनसे ना ले सके या कोई उनको फेवर ना करे, तो दे हैव टू बी केप्ट इंडिपेंडेंट. तो ये एक फीचर है, फेडरल फीचर है, कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. थर्ड फीचर है बाइकैमरलिज्म. ना बाइ मतलब 2, ठीक है. तो 2 लेजिस्लेचर होते हैं, सेंटर में होता है पार्लियामेंट और पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा. तो ये हो गए बाइकैमरल लेजिस्लेचर. वैसे ही स्टेट में भी स्टेट लेजिस्लेचर होता है जिनके 2 हाउसेस होते हैं, विधानसभा एंड विधान परिषद. सो that is the feature of federalism, that the state and as well as the center have 2 legislature to protect the interest of the state against the undue interference of the center. ठीक है. Now the fourth feature is division of power. जो powers हैं स्टेट के और सेंटर के, वो डिवाइडेड हैं, वो अलग अलग हैं, वो उनके जुरिस्डिक्शन तय किए गए हैं, वो अलग अलग ही अपने जो लिस्ट है, 3 लिस्ट बनाई जाती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, अकॉर्डिंग टू द 7th शेड्यूल. 12 शेड्यूल्स होते हैं और 7th शेड्यूल में ये साफ साफ मेंशन है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स डिफाइंड हैं, उनके जुरिस्डिक्शन संविधान में ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं, उसको चेंज नहीं किया जा सकता. ठीक है. सो देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस यूनियन लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से पावर्स आते हैं, किस किस फील्ड में ये अपने लॉ मेकिंग कर सकते हैं या उनके उस विंग में अपना डिसीजन दे सकते हैं. तो यूनियन लिस्ट में आता है डिफेंस, आर्मी, इंटरनेशनल रिलेशन, बैंकिंग, करेंसी, पोर्ट्स, रेलवेज, हाईवेज एंड कम्युनिकेशन. इससे रिलेटेड जितने भी कानून बनेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी. ठीक है. वेयर एज स्टेट जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक ऑर्डर्स, पुलिस,
public health and sanitation, hospital dispensaries, as well as betting and gambling. इससे related जो laws बनेंगे वो central government नहीं, सिर्फ और सिर्फ state government बनाएगी. Related जितने भी matters होंगे उसमें वो सिर्फ state government deal करेगी. Whereas the concurrent list, अब concurrent list क्या होती है? जहां पे दोनों central plus state government दोनों ही मिल के इसमें लॉज बनाते हैं. अब ये क्या क्या है? एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, डिवोर्स, एवरीथिंग विल कम अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट. तो इनसे रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे वे दोनों मिलके लॉज बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन एक चीज है, जो सपोज देयर इज अ disagreement over the making of the law, because both central government और state government मिलके बना रही है, तो chances हैं कि agree ना करें किसी point पे, तो उस condition में किसकी बात मानी जाएगी? तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, एंड दैट व्हाट मेक्स सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट. बिकॉज एक तो सारे इंपॉर्टेंट जो विंग्स हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के, इससे भी सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल हो जाती है. भाई डिफेंस आपके पास है, आर्मी आपके पास है, फॉरेन अफेयर्स में आप डील करेंगे, और बाकी पोर्ट, रेलवे, हाईवेज ये सब आपके पास है, बैंकिंग आपके पास है, करेंसी आपके पास है, तो ऑब्वियसली आप ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल हो जाएगी. वेयर एज कॉन्करेंट लिस्ट में भी अगर कोई मतभेद होता है, अगर कोई डिस्प्यूट होता है, अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है, तो उसमें भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा. तो दैट मेक्स द सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट. और हमने पहले डिस्कस किया था कि यूनिटरी गवर्नमेंट का फीचर क्या है. यूनिटरी गवर्नमेंट का फीचर है that there is one level of government where center is very very powerful, and जो उनके सब यूनिट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे, उनके ऑर्डर्स फॉलो करेंगे. तो अगर हम ऐसे देखें तो इंडिया इज यूनिटरी आल्सो इन नेचर. That we'll also discuss later on when we'll talk about the unitary features of the Indian Constitution. So this is the division of power. ये fourth point हो गया. How India is federal in nature, because there is division of power between the center and the state. Now comes the unitary features of the Constitution of India. Unitary में हम पहले ही बता चुके हैं कि there is one level of government, or if there is another level, that level is sub-unit of that central government. Now the first feature is single constitution. एक ही constitution है जो union और state दोनों पे लागू होगा. They both must follow the same constitution, and the state must operate within this single frame. तो एक ही संविधान है हिंदुस्तान का, और both center and the state has to follow the same constitution. Second is strong center. ठीक है, तो सेंटर है वो स्ट्रांग होगा. The Indian Constitution guarantees more power with the union list. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो 7th शेड्यूल में जो लिस्ट बने हैं तीनों, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट विंग्स हैं, वो सब के सब पोर्टफोलियोज हैं, वो सब के सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं. दैट इज द foreign affairs, the army, the defense, the banking, the currency, the highways, the railways, the ports. ये सब important portfolios हैं जो सब के सब center के पास हैं, which makes center powerful than the state government. ठीक है, और फिर आता है जो थर्ड फीचर है वो सिंगल सिटीजनशिप है. कोई डुअल सिटीजनशिप नहीं है इंडिया के पास, और रीजन क्या है? टू हेल्प इंक्रीज द फीलिंग ऑफ नेशनैलिटी. डिफरेंट रीजन्स के लोग हैं, कल्चर डिफरेंट है, जोग्राफिकल लोकेशंस डिफरेंट है, तो इन रीजनल डिफरेंसेस को मिटाने के लिए सिर्फ एक सिटीजनशिप रखी गई है, सो दैट people should have a feeling of nationality. So that also is a unitary feature of the constitution. The next unitary feature है वो emergency provisions. अब emergency क्या है? Emergency is when
there is an emergency in the country, the central government takes the control of the country over the state. State government के सारे control खत्म हो जाएंगे और central government will have all the authority and control over the country. So whatever laws or whatever decision is taken by the central government will have to be followed by the state government. उसमें किसी भी और स्टेट का या लोकल गवर्नमेंट की कोई कानून नहीं चलेगा, कोई ओपिनियन नहीं मैटर करेगी. ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये प्रोवाइड किया है कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी और विद इन द कंट्री इफ देयर इज एन इमरजेंसी, द सेंट्रल गवर्नमेंट will take over the whole of the country. तो उधर वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल हो जाती है इस कंडीशन में. सो दैट इज अनदर यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या है? एक तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है प्लस फ्लेक्सिबल भी है. रिजिड है और फ्लेक्सिबल है का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कैसे? जो सर्टेन प्रोविजंस हैं, देयर आर सर्टेन प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कैन बी इजीली अमेंडेड. अमेंडमेंट हो सकता है, संशोधन हो सकता है. किस तरह से संशोधन होता है? भाई हम पार्लियामेंट में सुनते हैं ना कि अमेंडमेंट हो रहा है. तो अमेंडमेंट कैसे होता है? अमेंडमेंट होता है कि जब आपकी मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट दे वोट इन फेवर ऑफ अ बिल which needs to be amended. तो जिसमें संशोधन करना है, जिस बिल में चेंजेस करना है, अगर मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस दे अग्री टू इट, देन द लॉ कैन बी अमेंडेड. तो वन या तो 2/3 मेंबर्स होने चाहिए या फिर सिंपल मेजॉरिटी से होने चाहिए. तो अगेन दिस मेक्स द सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल. फिर उनके पास पावर आ जाती है. क्यों? क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है. तो उनकी जो डिसीजन होगा वो वापस से अबाइड करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, जो भी अमेंडमेंट वो करेंगे. सो दैट इज द अनदर फीचर ऑफ अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नाउ कम्स द इंटीग्रेटेड जुडिशरी. जुडिशरी क्या है? इंटीग्रेटेड है, विच मीन्स दैट सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का वो कंट्रोल करता है पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम, पूरा का पूरा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन. जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दे दिए उसके बाद कोई लोअर कोर्ट उनके डिसीजन को या फॉर दैट मैटर कोई और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी उसको ओवररूल नहीं कर सकती है. एवरीबडी हैज टू अबाइड बाय द डिसीजंस ऑफ द Supreme Court. So, Supreme Courts control the judicial administration in the country, which is again a unitary feature. Then comes the unequal representation of the states in Rajya Sabha. ठीक है, राज्य सभा में अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है. अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है? जो लोकसभा है वहां पे तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हुई हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, वहां से आपके लोग चुन के जाते हैं. राज्यसभा में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट, इट इज some states will have more members if there is the population is more, and some states will have less member if the population is less. So there is no equal representation in Rajya Sabha. The state having more population will send more representative, whereas states having less population will send less representation. ठीक है? So in an ideal federal structure, equal representation is provided to all the states. तो अगर ideal federal system होगा तो उसमें equal representation होगा, ऐसे नहीं कि कम या ज्यादा चलेगा. तो that means कि India is quasi-federal and we do not follow just the federal system, but we also have unitary system of government. Now, the last feature of the unitary system is existence of union territories. अब यूनियन टेरिटरीज किसके पास है? उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्टली गवर्न होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से. उसमें स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि वो एक स्टेट नहीं है, स्टेट से छोटा है और सेंटर से भी छोटा है, तो इसलिए उसको उसकी जो गवर्नेंस है वो डायरेक्टली किसके हाथ में जाती है? यूनियन गवर्नमेंट के. तो दैट क्लियरली डिमार्केट्स दैट
state government is less powerful than the central government, और जो Indian Union है वो more powerful है than the state government. तो आई होप ये क्लियर है द डिफरेंस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट. उनके फीचर्स क्लियर होने चाहिए. यूनिटरी गवर्नमेंट के क्या फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और फेडरल गवर्नमेंट के क्या फीचर्स हैं. सो दैट एंड्स योर पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर.